Hi, this is Laqshay Kapoor and you're watching me on Awesome TV. तो लड़के जब प्यार में होते हैं वो कौन सी चीजें करते हैं? I What do you don't do like when you are in love? If I am in love, I will not shy away from doing anything for my partner. I can take a bullet for my partner. I really want to know how did you thought of stepping into Bollywood? That's fun because I never thought only of stepping into Bollywood. Bollywood actually happened to me rather than I, make a conscious call of coming to Bollywood. Guess the Bollywood song. The sun has dimmed, the moon has started burning. सूरज हुआ मध्यम, शाररारारारा, आसमां ये क्यों पिघलने लगा. In the moon, hit the cloud, blush and come, hide in my arms. चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना. क्या बात है. Hello and welcome to Awesome TV. मैं हूँ पूजा नवाथे and today I am in conversation with Laqshay Kapoor and we are here to talk about Jaan Denge Tumhe. Yes, but Pooja. before that, kasa his, kasa kai. He's clueless. So before we begin the interview, Vadiya. He's talking. So we were just trying to know if he knows Marathi. Which I don't. But you still know a few words like which I you only spoke know Chala ja or something you said. Kai zala. That's all I know. That's- so that I- means क्या हो रहा है? क्या Kai चल रहा है? Zala. What happened? What happened? Yeah. So I asked you, how are you? हाँ. Kasa his? And what should be the answer? Me mast, jhakkas. Oh, Say it. Me that mast. my mate says that. Mast hai. So nice. Now talking about Jaan Denge Tumhe. When I saw this song, beautiful location. Yeah. How refreshing was it to shot at such mesmerizing location? I think the only reason we could shoot is because of that location. It was the toughest shoot I've ever done. बहुत ही रुकी वाला shoot था. If you see those shots, आपको normal music video में दिखेंगे ही नहीं वो. नहीं. Because वो permissions का इतना issue, वहाँ पर privilege कोई नहीं किसी चीज़ का, facilities नहीं. Literally हम लोगों ने कुछ shots, कुछ locations लेने के लिए हम लोगों ने कपड़े तक कार में बदले हैं. There was no facilities. But the only reason we could pull this off, इसलिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की क्योंकि वो लोकेशन इतना प्यारा है और वो फ्रेम भी आप अगर देखो the moment it looks like VFX का शॉट लगता है जबकि वो प्रॉपर ड्रोन शॉट है उस जगह का. मैंने इससे ज़्यादा प्यारी जगह एटलीस्ट मैंने तो कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में. मुन्नार है ना? मुन्नार या केरला. I've never been there. Yeah, So it's कितने दिन का shooting We were there. हमने बेसिकली 2 गाने शूट किए थे केरला में. तो मैं था वहाँ पर. अच्छा, I was there for a week. I think 2 दिन शूट चला इस गाने का. अच्छा. बट 2 दिन लंबी शिफ्टें चली हैं हम लोगों ने. मतलब 15 घंटे 16 घंटे शूट किया है 2 दिन. So but it was fun. It was real fun. बहुत मजा आया. जिस तरीके से आपने डिफिकल्टीज के बारे में बात की, कहते हैं कि म्यूजिक एल्बम 3 मिनट का या 4 मिनट का 2 मिनट का भी होता है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि एक तो ड्यूरेशन काफी कम मिलता है आपको शूट करने के लिए. 1 या 2 दिन परमिशन इश्यूज होता है. Correct. तो इस गाने के साथ क्या कुछ डिफिकल्टीज फेस किया आपने? अब इस गाने के साथ एक्चुअली डिफिकल्टीज तो हर गाने के साथ होती हैं. बहुत प्रॉपर प्लान शूट मैंने कभी नहीं देखा. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है. बट आई थिंक इस गाने का जो स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट था उसकी लोकेशन एंड हमारी जो टीम थी, जो डायरेक्टर है और उनकी जो टीम थी वो सारी लोकलाइट थी. सो दे वर ऑल मलयालीज आई थिंक. हाँ, सो वो वहाँ भी 2-3 है ना साउथ या. तो अब वो क्या है कि वो आपस में दे वर सो गुड with the localities, with the local people. I am not kidding. बाहर से जाकर कोई इंसान वहाँ शूट कर ही नहीं सकता अगर आपके पास लोकल टीम नहीं है. तो एक तो लोग हिंदी में नहीं बोलते बिल्कुल. और एक्टर्स के लिए रादर थोड़ा एक पॉइंट के बाद इनकन्वीनियंट होता है क्योंकि वो इतना जोश में यंगड़ बिंगड़ करके हमें खड़े कर देते थे फ्रेम के आगे और हमें बताना भी भूल जाते थे और अपनी मलयाली में ही बोल जाते थे कि तो आपको गेस करना पड़ता था. करना क्या. So, but it was fun. They're very hardworking, South Indians are very hardworking. But it was ये इसलिए हो पाया क्योंकि पूरी टीम वहाँ की थी. Correct. The house also looks so beautiful. काफी अच्छा घर था वो. I wish मैं कभी बिना शूट के जाऊँ ऐसी जगह पे क्योंकि जब हम शूट कर रहे हैं तो ध्यान सारा शूट पे होता है. तो बहुत ज़्यादा enjoy नहीं कर पाते लोकेशन को. But बहुत प्यारा था. थोड़ा आउट कट अवे फ्रॉम द वर्ल्ड. नेट नहीं चल रहा था 2 दिन तक मेरा. कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं. बड़ी
But it must have helped you, right, to get into the skin of the character, to bring that emotions ki nahi. How does Lakshay process? I'm very impromptu. I if I'm shooting for a song, अगर मैं किसी गाने के लिए शूट कर रहा हूँ, वो गाने की स्टोरी अब तक ऑल्सो बिकॉज जो गाने मैं शूट करता हूँ वो गाने जो गाने मैं बनवाता हूँ या बनाता हूँ, तो उनमें मेरा एसेंस होता है ऑलरेडी. तो जब मुझे कैमरा के सामने जाना है उसमें कहीं ना कहीं 80% तो मैं ही हूँ इमोशन में, तो मुझे कैरेक्टर नहीं पकड़ना पड़ता क्योंकि वो मैं हूँ. इफ आई एम अगर मेरा कोई गाना रोमांटिक है तो वो गाना मैंने गाया भी उस रोमांस से है जिस रोमांस से मैं वो रोमांस करूँगा, जिस आइडिया से. तो आई थिंक मैं बहुत कैरेक्टर और उसमें घुसना घुसाना ये सब नहीं करता. आई मीन शॉट रेडी है उससे पहले आई नो कि आई हैव टू बी नेचुरल. आई कीप इट वेरी नेचुरल. मतलब शायद मेरा रियल लाइफ में भी एक्सप्रेशन वही होगा जो मेरा ऑन कैमरा होगा उस पर्टिकुलर शॉट के लिए. What is your idea of love? इन दिस वीडियो जो आइडिया ऑफ लव है, आई थिंक अगर वो प्यार है तो प्यार है, नहीं तो आई फील लव इन इट्स ओन वे इज ऑल्सो अ डील. हर चीज़ एक डील होती है. आप मुझे क्या दे सकते हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ इन रिटर्न. सो बेसिकली सेल्फलेस वाला अगर लव है जो इस वीडियो में दिखाया गया है, बिल्कुल. लड़के ने उस वक्त तक उस लड़की को प्यार किया, हर रोज किया, डिस्पाइट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न. ट्रू. जब तक वो जिंदा था. तो इतना सेल्फलेस वाला प्यार है तो उसको प्यार का नाम दें, नहीं तो आप उसको प्यार का नाम ना दें. आई फील. बट डू यू थिंक कि आजकल का जनरेशन जो है वो सेल्फलेस लव समझ नहीं पा रहा है इस सिचुएशनशिप के ज़माने में? I will not blame them also because time has changed. Parenting also holds a very major role. Absolutely. अगर आज की जनरेशन अपने माँ बाप से उस लेवल का प्यार नहीं कर सकती तो शायद पार्टनर के साथ भी नहीं कर पाएगी. तो हम लोगों ने अपने टाइम पर जैसे अपने माँ बाप को उनके माँ बाप के साथ देखा है वैसे हम लोग हमारे माँ बाप के साथ थे. सेल्फलेस ही थे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं फैमिली के लिए. वो थॉट हमेशा से रहा है. शायद वही चीज़ आपके पार्टनर के लिए भी आपकी निकलेगी. सो आई थिंक मोर देन ब्लेमिंग द जनरेशन, आई वुड रादर पुट द ब्लेम ऑन पेरेंट्स कि उनको दिखाओ वो जिससे वो जिस चीज़ के अंदर, जिस चीज़ से उनके अंदर वो भावना, वो इमोशन इनबिल्ट हो. बट आई फील वी आर ऑल नाउ टॉक्सिकेटेड. मतलब सोशल मीडिया हैज़ जस्ट इतना सब इंफॉर्मेशन आ रहा है, इतना सब ऑप्शंस आ रहा है, लॉयल्टी हैज़ गॉन आउट ऑफ द वे. बहुत डिफिकल्ट है बट स्टिल आई फील. बट डू यू ऑल्सो बिलीव दैट जिस चीज़ को आज लव बोलने में लोग घबराते हैं उनको काफ़ी इजीली ऑप्शंस मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है. लेट्स टॉक अबाउट ओल्ड स्कूल लव. This song actually talks about sacrifice. Yeah. And when you are in love, sacrifice is most important, which you do selflessly only for the people you love. When we talk about old school love, पहले के ज़माने में इतना easily access नहीं था in terms of chatting हो या फिर video calls हो या मिलना मतलब हम डरते थे पेरेंट्स से, हम छुप के मिला करते थे. If you have done that. So what do you have to say? I mean क्योंकि ऐसा था इस वजह से वो प्यार लंबा भी चलता था. क्योंकि उस प्यार के लिए एक फाइट थी, उस प्यार के लिए एक एग्रेशन था, उस प्यार के लिए एक जिद थी. अभी क्या है कि 4 दिन तक आप अगर कनेक्शन में नहीं हो तो प्यार भी यूटर्न मार लेता है. तो फिर किसी और का मैसेज आ गया और रिप्लाई कर दिया और बढ़िया बढ़िया बातें हो गई तो फिर वो लगता है कि नहीं यार ये भी बढ़िया ही है. It's not love. First we need to understand this is not love. This is just infatuation, attraction, lust maybe. True. But love क्योंकि उस टाइम पर उस शिद्दत से हम लोग पीछा करते थे उस चीज का, इसलिए उसकी वैल्यू थी, इसलिए वो लंबा भी चलता था. True. But nowadays we all talk about green flag and red flag. When I see this guy in this music album, it's full of green flags. Yeah. Totally. Yeah. And we keep talking कि लड़के नहीं करते हैं. But I believe जब कोई लड़का प्यार में होता है वो किसी भी हद को पार कर देता है. Tell me about it. जब कोई लड़का प्यार में होता है वो किस हद तक जा सकता है? I think लड़कों का एक इमोशन जो बहुत अंडररेटेड होता है वो ये होता है कि ऑब्वियसली मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो अपने आप को मतलब मैं उन्हीं लड़कों के हिसाब से बोल सकता हूँ जो मेरे जैसे होंगे. मुझे नहीं पता और आइडियोलॉजीज भी होती हैं लोगों की. बट एक बहुत अंडररेटेड इमोशन होता है ऑफ सैक्रिफाइस. मेन हैव अ वेरी अंडररेटेड इमोशन ऑफ सैक्रिफाइस. वो कभी बोलकर सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, वो अंदर ही अंदर इतना सैक्रिफाइस करते हैं अपने प्यार के लिए या और वो आई थिंक वो शुरू से इनबिल्ट होती है क्योंकि वो आप अपने पेरेंट्स के लिए पहले करते हो
कि भाई कोई भी लड़का जब बड़ा होता है उसके ऊपर सबसे बड़ा बर्डन क्या होता है कि पैसा कमाना है घर वालों के लिए, माँ बाप परेशान ना हो, वही वो इमोशन, वो आई एम नॉट ब्लेमिंग बट वो लड़कियों में नहीं होता उतना, बिकॉज ऑब्वियसली पुराने टाइम से दे हैव टू गेट मैरिड एंड दिस एंड दैट, एक वो यू नो जेनेटिकली एक ऐसी चीज इन्फ्यूज्ड है जो चेंज हो रहा है अब विद टाइम, एवरीबॉडी इज नाउ conditioned that way. या वी आर कंडीशनड दैट वे, दैट्स हाउ वी आर, यू नो, सो मेन हैव दैट अनसेट। आप कभी देख लो माँ का प्यार बहुत ज्यादा जाया होता है, बाप का प्यार कभी जाया इतना होता नहीं है, इट्स अ वेरी अंडररेटेड इमोशन। तो बहुत सैक्रिफाइस वाला हर मर्द में होता है, लेकिन इट इज फॉर द राइट वुमन। पर पता कैसे चले कि ये लड़का प्यार में है? पता चल जाएगा, जिसके साथ है उसको तो पता चल जाएगा। आई थिंक विमेन आर वेरी इंटेलिजेंट, उनको सब पता होता है, यू नो, उनको सब महसूस होता है। आई मीन विमेन आर फार मोर इंस्टिंक्टिव देन मेन। हम लोग थोड़े बेवकूफ़ हैं, लड़कियां एक कदम आगे हैं हमसे, बिकॉज ऑफ देयर मदरली इंस्टिंक्ट, बिकॉज ऑफ देयर यू नो पार्टनरशिप वाला इंस्टिंक्ट। तो उनको तो पता लग जाता है, एंड जिसको पता लग जाता है और जो उसकी वैल्यू करता है, आई थिंक वो लाइफ लॉन्ग खुशी रहता है। बिल्कुल। और जैसे कि हमने सॉन्ग में भी देखा, वो लेस नहीं बांध पा रही थी, लेकिन ही हेल्प्स हर इन एवरी लिटिल थिंग। तो लड़के जब प्यार में होते हैं वो कौन सी चीजें करते हैं? व्हाट डू यू डू? माई सेल्फ आई एम, जिसमें आई एम अ वेरी पैम्पर्ड काइंड ऑफ अ चाइल्ड, मतलब आई नीड समबडी टू टेक केयर ऑफ मी, बट इफ आई एम इन लव आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम डूइंग एनीथिंग फॉर माई पार्टनर। आई कैन टेक अ बुलेट फॉर माई पार्टनर, आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम, मतलब डिसरिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात है पार्टनर की। मैं पर्सनली ऐसा इंसान हूँ जो ऊंची आवाज़ भी नहीं करता, तो मैं बहुत ही थोड़ा डोसाइल किस्म का हूँ इस मामले में। मैंने शायद कभी अपने रिलेशनशिप में कभी ज़ोर से बोला भी नहीं होगा, बट दैट्स माई नेचर। कभी कभी बैकफायर भी करता है, यू नीड टू एक्सप्रेस। True. Girls also need that heat from the boy कि क्या है बोल। These women are very expressive. Yeah, so I mean sometimes, but it's all personal. Men will do anything and everything if they are in love. I mean, they should know that they are in love. बहुत बेवकूफियां भी करते हैं, और वो तब तक करते रहते हैं जब तक उनको महसूस नहीं होता कि ये है, this is my true emotion. Lakshay, I really want to know, how did you thought of stepping into Bollywood? That's fun because I never thought only of stepping into Bollywood. Bollywood actually happened to me rather than I, you know, make a conscious call of coming to Bollywood. I was doing my business and all of that. तो मुझे जब मुझे सही लोगों ने देखा एंड यू नो उन्होंने पकड़ा, एज इन उन्होंने They helped you. they helped me, helped से ज़्यादा I mean they actually put this thought in me कि this can be your career too. So when the right people did that, that is the time जब मैंने इसको एक विजन दिया। मैं बहुत मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं तो जीता मरता था म्यूज़िक को, मुझे तो ये करना था वो करना था, मैं भूल चुका था म्यूज़िक को। मतलब बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस और सिंगर्स होते हैं जो इतने केपेबल होते हैं, बट क्योंकि उनको रास्ता नहीं पता होता तो वो छूट जाता है। वो हमारा टैलेंट ही है ना। But also responsibilities, like I believe you have your family business and you have to take over it. Exactly. So family के लिए या खुद के लिए या ग्रोथ के लिए म्यूजिक एक पार्ट बन गया था मेरी लाइफ का, जो शायद मुझे ही पता था। इतना ज़्यादा मैं उसको खो चुका था कि मेरे आसपास भी लोगों को नहीं पता था ये गा सकता है। बट वो कहते हैं ना कि जो बचपन की कोई आपकी दिल की दुआ होती है वो भगवान वो सुनता ज़रूर है। तो बचपन में तो बहुत शौक था म्यूज़िक का, अटेंशन का, सुनाने का, यू नो आई वांटेड द गर्ल्स टू फील गुड इफ आई एम सिंगिंग। वो घूम के आया एक सही, जब जिंदगी का तकाजा मिल गया उस टाइम पर घूम फिर के आया मेरे पास। एंड ऑल्सो इतना अच्छा आया कि एक साल में आई हैव रीच्ड वेयर पीपल टेक 10 years to reach. So I mean it's all blessing. But it's not easy surviving in this industry. Yeah, Who all helped you to be I mean all the best of the people actually helped me, क्योंकि मेरे साथ कभी किसी ने बुरा किया नहीं। शायद क्योंकि मैंने कभी किसी का ना तो बुरा सोचा ना किया। मेरे को हेल्प ही किया लोगों ने। From you know from starting from the first person to actually help me was Karan Johar. उन्होंने लेके आए and now I am in I'm working with people in you know people like T series, labels like T series and people heading there. तो मुझे बहुत support और बहुत you know बहुत pampering भी कह सकते हैं। rather मैं कभी कभी anxious हो जाता हूँ, कभी कभी थोड़ा सा ये नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो मुझे ये जो esteemed लोग हैं जिनके पास शायद वक्त भी नहीं है किसी और को देने का, वो मुझे संभालते भी हैं कि नहीं calm down, ये इंडस्ट्री ऐसे चलती है, ऐसे करना है वैसे है। तो बहुत प्रिविलेज है। आई मीन
बहुत अच्छे लोगों ने बहुत साथ दिया है. Laqshay, you have very good personality. You look so handsome. Have you ever thought of giving a try to acting? This is the 10th time I'm answering this. Because you have such a body build up and then face, looks. I'll tell you. So You style well. So is it? Yeah, you style so well. So Okay. have you ever has that thought crossed No. your mind? Why? Because Apart from singing, would you like to do acting? I'll tell you because मैं बहुत ही स्कूल टाइम में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था मैं. तो आई वाज अ चबी फैट किड, बहुत मोटा था मैं. और वो कभी कॉन्फिडेंस आया नहीं मेरी लाइफ में कि यू नो आई कैन बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आई कैन डू दिस एंड दैट. अंदर कीड़ा बहुत था, अंदर बहुत एक म्यूजिक का, एक्टिंग का, बेसिकली इमोशंस को पोर्ट्रे करने का बहुत कीड़ा था शीशे के सामने. दो आई वाज फैट बट मैं अपनी नज़रों में तो हीरो था. बट वो अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से कभी लाइफ में सोचा ही नहीं कि यार ये भी हो सकता है. बट जैसे जैसे जर्नी बढ़ती गई आगे, यू नो म्यूजिक ने हाथ पकड़ा, उससे फिर म्यूजिक वीडियोस हुए, म्यूजिक वीडियोस में एक्ट करने का मौका मिला. अब हर म्यूजिक वीडियो के साथ हम इम्प्रूव कर रहे हैं. तो अभी तक ऐसा मैंने नहीं सोचा कि मुझे पर्टिकुलरली कुछ एक्टिंग का प्रोजेक्ट करना है, बिकॉज आई फील कि म्यूजिक ही इतना है. और अपने म्यूजिक में खुद अच्छी तरह एक्ट करूं और उसको लोगों को दिखाऊं, आई थिंक उससे बेटर कुछ प्रिविलेज होगा नहीं. बट कुछ अच्छा आया तो व्हाई नॉट. Let's see. And while talking about music, I have a small fun segment Yeah, to please. do with you. So basically, कुछ हिंदी songs के English translations है मेरे पास. You have to guess which song in Hindi and sing one line for us. Okay. Guess the Bollywood song. The sun has dimmed, the moon has started burning. सूरज हुआ मध्यम, शाररारारारा, आसमां ये क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी. क्या बात है. Okay, we will not break this friendship. We will die but leave each other's side. ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे हम अगर तेरा साथ ना तोड़ेंगे. Yeah. Okay, the next one is in the moon, hit the cloud, blush and come, hide in my arms. चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना सीने से लग जा तू. Yeah, something. I love this song. I got lost. Okay. When I saw a girl, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा. Pro at it, huh? wow, amazing. Okay. You are my journey, you are my destination. Leaving without you, oh heart, is difficult. तू मेरा सफर क्या? What is this song? You are my journey, you are my heart. You are my destination. Destination. What is this song? I don't know. Eh, mere hum safar. Oh, Go okay, next. okay. Okay. You showered love. Monsoon has come. The season has come for you and me to meet. बादल आया, what? Yeah. यार. You showered love. Monsoon has come. The season has come for you and me to meet. No cheating. Okay. मॉनसून को क्या कहते हैं हिंदी में? Savan. सावन. मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है. क्या बात है. At first sight, how did the magic happen? Your life has become my life. Don't know what will happen. पहली दफा, पहली नजर, पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया. तू है यहाँ मेरी बाहों में, आ भी जा. क्या बात है. You were just pro at it. Lovely. Thank you so much. Before we sign off, आपका खुद का गाना गवाए बिना हम कैसे sign off करें? Okay. 2 lines. लम्हा लम्हा मेरे दिल के पास रहो, उम्र भर एक तुम ही मेरे खास रहो. बुझ न पाए कभी तुम वो प्यास रहो, आखिरी सांस तक मेरी आस रहो. इसके आगे गाना सुनो. प्लीज जाके गाना सुनो और देखो भी, क्योंकि it's beautiful. It's beautifully shot.